And Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are safe and healthy at home. Today the date is 13 July 2020 and the day is Monday. It's your chemistry class and we have started chapter number 10, which was about acids, bases and salts. Your weekend homework was to solve test yourself 10.2. Let's solve it and answer these questions. First question is, when acids react with carbonates and bicarbonate, which gas evolves out? Answer on page number 27. Reaction with carbonates and bicarbonate. ठीक है, acid reacts with carbonates and bicarbonate to form corresponding salts with the evolution of carbon dioxide gas. You can write any one of the reaction. Question number 2. Which type of salts produce sulfur dioxide gas on reacting with acids? Answer is on page number 28. Acids react with sulfides and bisulfide to form salt with the liberation of sulfur dioxide gas. You can write any one of the reaction. Next is, give the uses of sulfuric acids. Answer on page number 28. Point number 1, sulfuric acid. Sulfuric acid. Next question is, name the gas liberated when alkalis react with ammonium salt. Answer on page number 29. Point number 2, reaction with ammonium salt. You can write any one of the reaction. Next question is, write down the colors of the precipitates formed by the reaction of aqueous caustic soda with solution of copper, zinc and ferric salt. Answer is on पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पे जो इसके रेलिवेंट रिएक्शंस जो दिए गए हैं आपको मैट्रिक्स के साथ, आपने वो लिखते नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एंड अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज. तो आपने यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे. ठीक है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज. Our next topic is about the stomach acidity. जो हमारे मैदे में जो तेज़ाबियत हो जाती है या मैदे में जो जलन हो जाती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Stomach acidity secretes chemicals in a regular way to digest food. These chemicals mainly consist of hydrochloric acid along with other salts. Although hydrochloric acid is highly corrosive, but stomach is protected from its effect because it is lined with cells that produce a protected from its effects that produce a salt base. The base neutralizes stomach acids. The important function of the base of this acid is to break down chemical bonds of food in the digestion process. Thus, big molecules of foods are converted into small ones. It also kills the harmful bacteria of certain foods and drink. इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो हमारा स्टमक है, इसमें बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं. ये हमें भी पता है कि जो हमारी डाइजेशन है वो सारी की सारी स्टमक यानी मैदे के अंदर होती है. ठीक है. तो अब वो कह रहा है जो हमारा स्टमक है, इसमें सिक्रीशंस होती हैं, ये जो फूड पर एक्ट करती हैं, उनको ब्रेक करती हैं. तो उनके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ क्रोसिव. ठीक है. एसिड जितने भी होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, लेकिन हमारे स्टमक की जो वॉल है उसके सेल्स ने उसको प्रोटेक्ट किया होता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचा सके. अब वो कह रहा है कि हमारे जो खाने के अंदर जितने भी बेस प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, स्पाइसी या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उतने ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ताकि वो हमारे खाने को न्यूट्रलाइज कर सके. आपको पता है जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ठीक है. तो जितना ज़्यादा हम बेस
अपने खाने में लेंगे उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड के में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ता है, और जो हमारे फूड के अंदर अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उसको भी किल करता है, उसको भी ख़त्म कर देता है और हमारे फूड को हेल्दी कर देता है। However, sometimes stomach produce too much acid. It is because stomach acidity is called hyperacidity। ठीक है, कि बाज़ का ऐसे होता है कि जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है। और वो क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया होता है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपर एसिडिटी। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन throughout the gastrointestinal tract. These feelings sometimes extend towards the chest, that is called heartburning। वो कह रहा है कि जी ऐसे होता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या अगर हमारे फूड में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से हमारे स्टमक ने बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। ठीक है, हमें बर्निंग होती है, तो उसको हम लोग हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं। लेकिन वो कह रहा है अगर यह हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और कंटिन्यूस रहे तो फिर वो हमारी चेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जिसे हम लोग हार्ट बर्निंग का नाम देते हैं। द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपर एसिडिटी इज़ अवॉइडिंग overeating and staying away from fatty acids and spicy foods। फैटी एसिड फूड ऐसे फूड जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैट्स हों, ठीक है, उनसे आपने दूर रहना है। पॉइंट नंबर 2, सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग, रिमेंबरिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील। कि सिंपल फूड लें, और आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है, बल्कि एटलीस्ट 45 मिनट तक आपने पोजीशन को सीधा रखना है। मीन्स आप बैठे रहें या न वॉक कर लें, लेकिन आपने लेटना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग। और अगर आपने सोना चाह रहे हैं खाना खाने के बाद, तो अपने सर को बिल्कुल आपने सीधा बॉडी के साथ सीधा रख के नहीं सोना, बल्कि उसको थोड़ा सा ऊंचा रख के सोना है, ताकि आप ये अगर आपको स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम है या अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग, तो आपने अपना सर बिल्कुल नीचे नहीं रखना, बल्कि उसको थोड़ा एलिवेट करके रखना है। Our next topic is process of etching in art and industry. The process of etching on glass is carried out by using a wax stencil. What is stencil? Stencil, a thin plate of metal, leather or other material used in painting, marking, etc. The pattern is cut out of the plate, which is then laid flat on the surface to be marked and the color brushed over it. It is called stencil plate। ठीक है, कि हमें अपने लेदर के ऊपर और अगर हमने अपने किसी भी मेटल के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम लोग जो पेंटिंग करते हैं लेदर या मेटल की प्लेट के ऊपर, तो उसको स्टेंसिल बोलते हैं। स्टेंसिल इज़ प्लेस्ड ऑन एरियाज ऑफ ग्लास और मिरर दैट आर टू बी सेव्ड फ्रॉम एसिड्स। The glass or mirror is dipped into hydrochloric acid. The acid dissolves the exposed part of the glass, thus etching it. This process has been very dangerous because the acids would damage the skin and tissue of artist's body. Although it is dangerous to deal with the acid, yet etching done with acid is very attractive as compared to using other chemicals। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, इट्स अ सिंपल टॉपिक, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेंसिल, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि क्या होता है। यू हैव टू लर्न इट, ओके, और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और अपना काम आपने डेली साथ साथ याद करना है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, यू कैन हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड आस्क। थैंक यू।